Principal sir, director sir, teachers and all my friends. I, Tushita Soni, Hi Paksha. from class 11 Humanities here to share some English news headlines. Imran Khan to contest general elections from at least 3 constituencies, says his party. Israel battles Hamas on street of Gaza City as UN delays vote again. Lok Sabha takes up criminal law bills after suspension of 49 more MPs. EU reaches agreement on reforming bloc's migration laws. World Bank happy with Lanka reforms releases second tranche of $250 million. Maldives will not renew agreement for joint hydrographic survey with India. Colorado Supreme Court bans Donald Trump from states to 2024 US presidential ballot. Sports news. Third ODI of India versus South Africa on 21st December 4:30 p.m. Sports Ministry confirms Arjuna Award for Shami, Khel Ratna to Satvik and Chirag. Man City reached Club World Cup final and now goes for fifth title in 2023. Roma will face Feyenoord in Europe League. Railways overcome major tunneling hurdle in Udhampur Srinagar Barmula Rail Link project. India beat France 5-4 in the last match to record lone win of Five Nation tournament. Delhi HC reserves order on Mapua Moitro defamation suit. Thank you. Chelsea and Fulham will penalty shootouts to reach English League Cup. Thank you. Right, pray girls for the prayer. My name is Jigyasha Rathod from Laram Humanities and I am presenting thought before you on parenting. Parenting is the easiest thing in the world to have an opinion, but it is hardest thing to do. Thank you. मेरा नाम प्रगति जोशी कक्षा 11वीं कला वर्ग की छात्र आज आपके सामने पिता पर कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता रोटी है, कपड़ा है। पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है। पिता से ही माँ की जोड़ी बिंदिया और सुहाग है। पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं और अगर पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने। Process of raising, promoting and supporting the physical, emotion and the co-negative development of a child to adulthood and across the life. Now I would like to invite Abhinav for English speaking. Represented principals and directors and teachers and all my dear friends. Myself Abhinav Singh Rajput, behalf of class 11th Humanities. Today I am presenting a speech on topic parenting. I am honored to be with you today to share my views on parenting. I am going to share my opinions on the definities of being parents. Today, how to realize a kid with all-rounded presenting what the top priority of children's life should be and family our experience as a child. It is a very difficult to be
parents today nothing only do we need to make both physical efforts and mental efforts to as in rising today's generation, but we also need to make important decisions that will affect the future development of today's generation. We and will affect the future development of our today's generation. Our today's generation must be to able to adopt the changes. Thus, it is of course important for us parents to explore and tailor make most suitable type of parenting for today's generation. Thank you. बिना उसके ना एक पल भी गवारा है, पिता ही साथी पिता ही सहारा है, बेमतलब सी दुनिया में वही हमारी शान है, बेमतलब सी दुनिया में वही हमारी शान है, किसी शख्स के वजूद की पिता ही पहली पहचान है, पिता ही पहली पहचान है। इसी के साथ मैं संजना को बुलाना चाहूंगी। Thanks Dad, thank you Mom, thank you Dad. 3 small words, so much to add, for all your love and your support. A million words could not be short, the word I love you seem to you, to express the love I have for you. A very warm good morning to respected principal sir, director sir, teachers and all my dear friends. I Urvashi Soni from 11th Humanities. Today I am here to present a beautiful poem on parenting. You created them and gifted me as a gem, did not teach me only to walk but difficult path to unblock, fulfilling my every demand for better man, not following any command, providing me with the correct guide in each and every ride of my life. Protect me from every hurdle, but give happiness in abundance. Thank you God for the present, for gifting me your best parent. Thank you. आदरणीय महानुभाव एवं मेरे सभी मित्रों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं मुकेश कुमार प्रजापत कक्षा 11वीं कला वर्ग का छात्र आज आपके सम्मुख मातृभक्ति पर एक काव्यात्मक भाषण प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हूँ। माँ, ये शब्द बहुत छोटा है पर इसमें पूरी दुनिया समाई है। जब संतान जन्म लेती है तो वह रोती इसीलिए ही है क्योंकि उसने संसार की सबसे पवित्र जगह खो दी। एक संतान का जीवन अपनी माता के अंचल में समाहित रहता है। हम चाहे कितने ही बूढ़े क्यों ना हो जाए, अपनी माँ के लिए रहेंगे तो हम बच्चे ही। वैसे बता दूं कि ऐसी कोई कलम नहीं जो माँ का वर्णन कर सके, पर मैं यह दावे के साथ कर सकता हूँ कि ऐसी कोई संतान नहीं जो अपनी माँ का बखान ना कर सके। आपने यह तो सुना ही होगा कि सूत कपूत सुने हैं पढ़ना, माता सुनी कुमाता। यह एक पुख्ता सबूत है कि माँ कितनी निर्मल, पवित्र एवं कोमल है। मैं 100% यह कह सकता हूँ कि आप सभी को यह खबर भी नहीं होगी कि आपकी मम्मी की लास्ट टाइम तबीयत कब खराब हुई, लेकिन मैं यह 200% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आपकी मम्मी को आपकी तबीयत कब खराब हुई यह तारीख, बार, दिन, टाइम के साथ याद है। लेकिन इस नश्वर दुनिया में दुर्भाग्यवश माँ का भी अंत खुदा, रब, भगवान ने अपने जीवन मरण के इस बही खाते में अवश्य लिखा, ताकि संतान इस भगवान के अंश जिसे लोग माँ नाम से भी जानते हैं का महत्व समझ सके। तो मैं अपने इस काव्यात्मक भाषण का अंत एक कविता के साथ करूंगा जिसमें माँ की यादें समाहित हैं। रात को देर से लौटूं तो कौन नाराज होगा भला, कौन कहेगा कि बार बार अब कहाँ चला, दोस्तों के साथ घूमने पर उल्हाने कौन देगा, मेरे वे तमाम झूठे बहाने कौन देगा, कौन कहेगा कि इस उम्र में क्यों परेशान करता है, हाय राम ये लड़का क्यों नहीं सुधरता है, पैसे कहाँ खर्च हो जाते हैं तेरे, क्यों नहीं बताता है, सारा सारा दिन मुझे सताता है, रात को देर से आता है, खाना गर्म करने को जागती रहूं, खिलाने को तेरे पीछे भागती रहूं, बहाती रहूं आंसू तेरे लिए, कभी कुछ सोचा है मेरे लिए। खैर मेरा तो क्या होना है और क्या हुआ है, तू खुश रहना बस यही दुआ है। और आज तमाम खुशियां ही खुशियां है। गम ये नहीं है कि ये सब खुशियां कोई बांटने वाला होता, गम ये नहीं है कि ये सब खुशियां कोई बांटने वाला होता, पर कोई तो होता जो गलतियों पे डांटने वाला होता। थैंक यू। Exists. Every child is a unique individual with their own needs, desires, and quirks. So the first rule of effective parenting is to understand their needs. Next, communication is key. It's not just about conveying your expectations or rules. It's about creating an open dialogue where your child feels heard and understood. It's about fostering a relationship built on trust. It can be as simple as asking about their day or discussing their
book or movie. सबसे पहले आज के असेंबली के लिए एक बार जोरदार तालियां। वाकई में बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही भाव से जुड़ा हुआ विषय है माता पिता पेरेंटिंग। इसमें श्लोक भी है कि मातरम पितरम तस्मात् सर्वयज्ञे पूज्येत। माता सर्वतीर्थमयी और पिता संपूर्ण देवताओं का स्वरूप है, इसलिए सभी प्रकार से यत्न पूर्वक प्रयास पूर्वक माता पिता की सेवा और पूजा करनी चाहिए। एक छोटा सा किस्सा है, हिमाचल प्रदेश में अगर आप सभी गए हैं तो वहाँ जैसे सेब के पेड़ वगैरह ज़्यादा होते हैं, कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, तो वहाँ का एक किस्सा है माता पिता से जुड़ा हुआ, वो आपको मैं सुना रहा हूँ। एक बार एक व्यक्ति की फल की दुकान होती है, कच्ची रेहड़ी जो ठेला लगा कर बैठते हैं वैसी दुकान होती है। उस रेहड़ी के ऊपर उस दुकान का नाम तो लिखा होता है, लेकिन उसके साथ में एक और बोर्ड लगा हुआ होता है। लिखा रहता है उसके ऊपर, मेरी माँ बीमार है, मैं उसकी सेवा में लगा हूँ, अगर आपको फल लेने हैं तो आप किलो के हिसाब से यहाँ पर तोल कर फल ले सकते हैं। उसका दाम पास में रखी टोकरी में रख दें, वहाँ कोई लॉक नहीं लगा। देखते हैं व्यक्ति इधर से गुजरते हैं, पढ़ते हैं, जिसको फल चाहिए होता है 1 किलो तोला, उसके ले लिया और उसके पैसे रख दिए। और जब वो पैसे रख रहा होता है व्यक्ति, वो देखता है नीचे पैसे और भी पड़े, लेकिन उसके मन में बुरे भाव नहीं जागते, क्योंकि वो देखता है उसकी माँ की सेवा कर रहा हो, वो इस समय दुकान पर नहीं आ पा रहा। रोज वह इसी प्रकार से सुबह सुबह आकर फल रख के जाता, वापस शाम को आता है, क्योंकि उसको सेवा के लिए पैसे भी चाहिए होते हैं, इसलिए शाम को आके वो पैसे लेके चला जाता। जब एक व्यक्ति आखिर में शाम के वक्त उससे मिलता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या हुआ, तो वो बताता है मेरी माँ जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार है और उन्होंने कहा है कि मैं ऐसे वक्त में मैं हर समय तुम्हारे साथ में रहना चाहती हूँ, इसलिए, और मैंने गुस्से में एक बार कहा भी कि मैं अगर यहाँ हर समय रहूँगा तो किस प्रकार से अपना पैसे वैसे कैसे इनकम हो पाएगी। तो उन्होंने कहा अपनी किस्मत का लिखा होगा तो अपने आप आ जाएगा, और नहीं तो तू सिर्फ फल रख के आ जा, अगर तेरा कुछ भी घाटा या कुछ भी हानि होती है तो तू मुझे आके बोल दे। ये विश्वास था एक माँ का, जो रोज इसी प्रकार से वह पुत्र वहाँ पे जाके फल रख के आता है और उसका दाम बिल्कुल सटीक उतने के उतने पैसे वहाँ पे रोज मिल भी जाते हैं। यही घटना रोज के रोज घटित होती है। आखिर में कुछ दिनों बाद में उसे एक नोट लिखा हुआ वहाँ पे मिलता है एक पेज पर कि अगर तुम्हारी माँ की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाए तो मुझे कॉल कर देना, मैं डॉक्टर हूँ, मैं तुरंत वहाँ पहुँच जाऊँगा। लोग वहाँ पर मदद के लिए दवाइयाँ तक रखने लग गए, कोई खजूर रखने लग गया, कुछ रखने लग गया। उल्टा उस फल के तो पैसे आ ही रहे थे, लेकिन उसकी माँ की सेवा के लिए भी वहाँ पे वस्तुएं, ज़रूरतें सारी पूरी होने लगी। सिर्फ किस बात से, माँ का विश्वास था, बेटे के लिए जो आशीर्वाद था, उससे ये इतना सफल हो पाया, इतना कुछ हो पाया। तो एक छोटी सी ये सत्य घटना है, तो इससे आप समझ सकते हैं। जैसे मैंने कुछ दिन पहले भी ये कहा था, माता पिता का आशीर्वाद, चरण स्पर्श रोज करना चाहिए। एक पॉजिटिव वाइब्रेशन का एक सर्कल बनता है। और दूसरा, जब हम प्रणाम करते हैं तो किसी के ऐसे माता पिता नहीं होंगे जो कोई बुरा भला कोई वर्ड बोल दे। ऐसा किसी के हैं? किसी के नहीं हो सकता। और ऐसा माना जाता है दिन में कुछ ऐसे वक्त आता है, कुछ समय ऐसा आता है जब हमारी जीभ पर माँ सरस्वती विराजमान होती है, और जो बात कह देते हैं वो सत्य भी ही हो जाती है। इसलिए क्या पता माता पिता के मुंह से निकली भी कौन सी बात सच हो जाए, तो अच्छा आशीर्वाद देते हैं तो उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए आज से हमें एक